Questions based on cross product exercise. (10.4). Question number 9. Find the area of the triangle with vertices. See, the vertices of the triangles are given and you have to find the area of triangle. In this condition, there is formula of finding the area of triangle 1 by 2 AB cross AC. I given you formula in the theory to find the area of triangle when vertices are given. So the question number 9 of 10.4 exercise is very important question. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, बोर्ड एग्जाम में आएंगे 10.4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं हम इस क्वेश्चन को. Vertices are 1, 1, 2, 2, 3, 5 and 1, 5, 5. See, we have 3 points. We have 3 points A, B, then C. Find the area of triangle. You can use AB cross AC or BC cross BA or CA cross CB. Just to explain this formula. So first you find area of triangle ABC is equal to 1 by 2. Most of the time we use AB cross AC. Okay. So what is AB? All of you know AB we can find using AB OB minus OA using which formula? Position vector formula. Position vector of B minus position vector of A. So OB minus OA will give AB vector. Similarly, we can find AC vector. AC vector will be OC minus OA. Because points are given means positions are given. So OB vector will be 2i 3j 5k. 2k. Okay. And OA vector is I plus j plus 2k. You will get I plus 2j plus 3k. This is AB vector. Similarly, AC vector you can write OC minus OA, position vector of C minus position vector of a, terminal minus initial. So OC minus OA you will write I plus 5j plus 5k. OC vector, position vector 1 5 5 will I plus 5j plus 5k, minus OA is I plus j plus 2k. Okay, when you subtract this you will get 0i plus 4j plus 3k AC vector. The formula is mod of AB cross AC. So first we find AB cross AC. This is nothing but a determinant. Cross product is a determinant explained in the theory. To find a cross product when the directions ratios or components are given, we use determinant. The first row will be of AB vector and that will be 1 2 3 and the AC vector 0 4 3. Is there any doubt? You can find I vector is 6 minus 12 minus j vector is 3 minus 0 plus k vector is 4 minus 0. This is minus 6i minus 3j plus 4k. AB cross AC. Now take the mod of this AB cross AC because in formula we required mod of AB cross AC. You know how to find the mod of the vector. Take the square root of sum of square of components. Minus 6 square minus 3 square plus 4 square. 36 plus 9 plus 16. Root 61. So area equal to area of triangle ABC will be equal to 1 by 2 root 61 by 1. Equation 1 इसको दे देते हैं हम. Equation 1 में put कर दिया. So this is the answer of area of triangle
ए बी सी। 4 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट पता नहीं फिर भी इसको गलत कर देते हैं। कारण वो डायरेक्ट ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के अंदर क्या लिख देते हैं, आई जे 2k, 2i 3j 5k, 1i 5j 5k, 3 साइड्स ले लेते हैं, जबकि वो पोजीशन दे रखी है, और फिर उनको माइनस कर देते हैं, तो गलत हो जाता है वो उससे। miscellaneous exercise example number 26, very important. Example number 20 and 29 and 30. Example number 29 and 30 are all. Example number 29, 30 and 26. Very important example. Miscellaneous. Okay. Now miscellaneous exercise question number 1. Example तो आप करेंगे. Miscellaneous exercise question number 1. This exercise is also important exercise. एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, वेक्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे और एग्जाम्पल में मिलेंगे, स्पेशली वो अल्फा बीटा वाला एग्जाम्पल जो मैंने बोले हैं 29 एंड 30। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व एट द टाइम ऑफ एग्जाम, उनको जरूर करके जाएंगे आप दोनों तीनों एग्जाम्पल को। Miscellaneous exercise question number 1. Write down the unit vector in xy plane making angle of 30 degree with the positive direction of x axis. x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक वेक्टर xy प्लेन में मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। 30 डिग्री इसके साथ बना रहा है, तो इसके साथ कितना हो जाएगा 60 डिग्री y एक्सिस के साथ में। ये y डैश, ये x डैश, ये o, दिस इज द वेक्टर OP, आर वेक्टर। आपको क्या फाइंड करना है, इस वेक्टर OP के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y, मतलब कंपोनेंट्स फाइंड कर लो आप, तो आपको x और y मिल जाएगा, और x और y मिल जाएगा तो वेक्टर मिल जाएगा, बिकॉज आर वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj। अब इस कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos अल्फा x अपॉन आर एंड cos बीटा y अपॉन आर। ये फॉर्म में लिखा है मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के, L इक्वल टू, अब cos अल्फा मतलब यहाँ पे cos 30 हो जाएगा, cos 30 x अपॉन आर, और ऐसे यहाँ पे cos बीटा कितना हो जाएगा, cos 60 y अपॉन आर। आर इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। cos 30 कितना होता है, √3/2 x अपॉन आर, एंड cos 60 कितना होता है 1/2 y अपॉन आर। हमें पता है कि x अपॉन आर को हम क्या लिखते हैं L, और y अपॉन आर को हम क्या लिखते हैं M। L और M मिल गया मुझे, देयरफॉर L इक्वल टू √3/2 एंड M इक्वल टू 1/2। मैं यहाँ पे भी लिख सकता था डायरेक्ट इसको L और M भी लिख सकते थे, तो L और M मुझे मिल जाएंगे, तो आर केप लिख सकता हूं मैं, आर केप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस √3/2i प्लस 1/2j, आर वेक्टर। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर ही पूछा था, देखो उसने ना, ये आर केप, दिस इज यूनिट वेक्टर, ओके, आर केप। तो यहाँ पे मुझे x और y की जगह क्या लिखने थे, L और M, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस L और M, cos अल्फा cos बीटा गिवन था 30 और उससे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करना है, सीधा लिखना है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, थ्योरी है। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में वो कितना जाती है, 4 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
देखो अच्छे क्वेश्चन तो इधर मिल रहे हैं आपको ना, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, जो लिखाई थी इतनी थ्योरी आपको मैंने, उस पर बेस्ड 4 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद 3 किलोमीटर डायरेक्शन किसमें है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। शुरुआत से वो अब कहां पर जाके रुकी है, इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट, उसका टर्मिनल पॉइंट क्या है वो आपको डिटरमाइन करना है, वो फाइंड करना है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो इट विल बी अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पर अगर इस तरह से बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको गर्ल को कहाँ पर मूव करेगी, पहले वो इतना 4 किलोमीटर इधर वेस्ट डायरेक्शन में, then towards the west, then she walks 3 किलोमीटर in a direction of 30 डिग्री east of north। ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ पे समझना पड़ेगा इस जगह पर आने के बाद, ये नॉर्थ है और ये इसका ईस्ट हो जाएगा इधर। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ऐसा 30 डिग्री इधर बनेगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और वो यहाँ पे पहुंच जाती पी पॉइंट पर 3 किलोमीटर चलकर, ऐसा है। इनिशियल पॉइंट उसका देखो ये था, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया था उसने ओ से, पहले वो ओ से कहां तक गई, ए तक, फिर ए से वो कहां तक गई है, पी तक। जब ओ ए से पी तक गई है तो 30 डिग्री है, तो इधर कितना एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं ये वेक्टर ओपी को डिटरमाइन कर सकता हूं। दिस वेक्टर इज ओपी वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, क्योंकि उसका पोजीशन एक पॉइंट पी पे जाके स्टॉप हुई है, वो एक ओ से एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, जो एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ओपी वेक्टर। तो इस ओपी वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 4, ठीक है, ये 4 है, हम इसको x ले लेते हैं, तो ये 4 माइनस एक्स बचेगा। ओके, ये पीएल है। अगर हम ट्राइंगल पी एल ए की बात करें तो एक राइट ट्राइंगल है पी एल ए, राइट ट्राइंगल पी एल ए। इन राइट ट्राइंगल पी एल ए ये लेंथ है मेरे पास और ये लेंथ भी है मेरे पास, मतलब बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है, और मुझे ये नहीं पता, इसको मैं y ले लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे सिर्फ एक्स और वाई फाइंड करना है। देखो एक्स और वाई फाइंड कर लूंगा ना, तो ओपी वेक्टर में लिख लूंगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स और वाई फाइंड करने, तो एक्स और वाई कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यू कैन राइट हियर ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल पी एल ए। पी एल ए राइट ट्राइंगल को देखें आप, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इसके ऊपर इस तरह से। सो कॉस 60 4 माइनस एक्स अपॉन 3, ये डिस्टेंस 3 है और ये 4 माइनस एक्स है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। सो 1/2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 3, तो एक्स 3/2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू 5/2। एक्स की वैल्यू तो मिल गई, देखो मुझे एक्स 5/2 आ गया। ओके, अब क्या फाइंड करना है मुझे वाई, तो वाई फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आपका सेंस क्या बोलता है, कौन सा एंगल यूज करेंगे, साइन मतलब साइन यूज करेंगे या कॉस, साइन। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, y अपॉन 3, ये √3/2 होता है। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3√3/2। So we can write this OP vector equal to minus xi plus yj, मतलब माइनस 5/2i प्लस 3√3/2j। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये उसका आंसर है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी, मैग्नीट्यूड फाइंड करना नहीं है क्वेश्चन में, तो डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो आंसर तो ये आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। Take the screenshot and take the attendance also this time.
10:42 पे अटेंडेंस लिए, उस समय जो प्रेजेंट है 73 स्टूडेंट्स, वो काउंट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, वेक्टर ए दो वेक्टर के सम के इक्वल दे रखा है। ए वेक्टर क्वेश्चन नंबर 4 में ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी, ये ऊपर वेक्टर के साइन ही है, इसके ऊपर बी प्लस सी वेक्टर है। देन इज इट ट्रू दैट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी? कैन यू राइट दैट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी? नो, सिंस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज कैन नॉट एक्सीड मॉड ए प्लस मॉड बी, ये होता है रीजन। जस्टिफाई वाला आंसर में ये लिखेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी कैन नॉट एक्सीड मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, क्योंकि अगर हम तीनों वेक्टर्स स्केलर हो, मतलब सॉरी कोलिनियर हो, तभी ये पॉसिबल है मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, बी प्लस सी इक्वल टू ए, है ना, जब तीनों कोलिनियर हो। तो अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो फिर कैसे ट्राइंगल की तीनों साइड्स, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी में तो क्या आता है, लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूंगा, जो पहले इस टाइप के आ चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। थ्री वेक्टर्स आर गिवन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a minus b plus 3c, let r k be a unit vector parallel to 2a minus b plus 3c equal to d, इसको d मान लिया। This implies r cape is a unit vector parallel to d vector. This implies r vector can be written as t into d vector. थ्योरी ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, इसको घुमा दो, ऐसे बताया था ना, टी लिख दिया मैंने इसमें। इसका मॉड कितना होगा, इसका मॉड कितना होगा, 1, यूनिट वेक्टर है टी डी। अब हमको टी फाइंड करने के लिए डी वेक्टर चाहिए। डी वेक्टर गिवन है हमें, इनका मॉडुलस मॉड डी वेक्टर कितना आएगा, 2a माइनस बी प्लस 3c, 2a, ए वेक्टर इज गिवन, व्हाट इज ए वेक्टर, i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के, माइनस बी वेक्टर इज गिवन 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k, प्लस सी वेक्टर इज गिवन i माइनस 2j प्लस k, this is d vector. So we have a b and c vector, इन सबको 2 का b का मल्टीप्लाई, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको बताई थी मैंने थ्योरी की, एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर्स के स्केलर मल्टीपल के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये स्केलर मल्टीपल के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 2-3 वेक्टर है, उसमें किसी में 2 का मल्टीप्लाई, किसी में 3 में, किसी में -1 का मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो दिस डी वेक्टर आई एज्यूम दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब 3-4 वेक्टर को मिला के बना हुआ वेक्टर है। तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से 2i माइनस 2i प्लस 3i बचेगा, क्योंकि 2i और 2i तो कट जाएगा, माइनस प्लस, ये 2j है और ये माइनस माइनस प्लस j, तो 2j माइनस 2j, इधर 2j और इधर भी माइनस माइनस प्लस j, 3j एंड माइनस j, तो प्लस j बचेगा, एक j बचेगा ना, 2j और प्लस 1 3j, उसमें से -6, सॉरी -6 आएगा ना। ये तो हो गया 2j और ये हो गया 1j, तो 3j में से -6j जाएगा तो -3j बचेगा। ठीक है, चेक करते जाएं प्लीज। प्लस 2k माइनस 3k, तो माइनस k बचेगा, उसमें प्लस 3k लिखेंगे तो प्लस 2k आएगा। सो दिस इज डी वेक्टर, इसका मॉड कितना आएगा,
vector of mod of this vector will be 9 plus 9 plus 4 root 22. Is it correct? Any mistake, please? If you are finding any mistake, algebraic mistake, let me know here itself. 2a minus b plus 3c. All of you are here in the class? Are you listening me? Yes. Okay. So the mod d is equal to root 22. This implies t equal to 1 by root 22. मुझे क्या फाइंड करना था? r वेक्टर. Therefore r यूनिट वेक्टर फाइंड करना था. t की वैल्यू मेरे पास 1 by root 22 आ गई है और d वेक्टर ये लिखा हुआ यहाँ पर 3i minus 3j plus 2k. मतलब एक डी वेक्टर फाइंड करके उसके मॉड से डिवाइड कर दिया मैंने तो यूनिट वेक्टर आ गया, तीनों को प्लस करके. वही चीज लिखी है मैंने यहाँ पर, उसको मैथमेटिकल वे में लिख के दिया है बस. क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9, 8 इज फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे आप. स्क्रीनशॉट डन. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर. एक आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q. 2 पॉइंट्स P और Q दिए हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ये डिवाइड करता है. P and Q whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b. मतलब a P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर 2a plus b है. दिस इज द पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर. एंड a minus 3b OQ वेक्टर a minus 3b, इसका पोजीशन वेक्टर ये. एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2. एक्सटर्नली रेशियो दे रखा है 1:2, एक्सटर्नली लिखा हुआ है. मतलब ये आर पॉइंट P और Q को एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं आर पॉइंट यहां नहीं लूंगा, बाहर लूंगा. इसके P और Q के बाहर लिया है आर पॉइंट. मुझे इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट. इसका पोजीशन वेक्टर में आर वेक्टर फाइंड करना है. दिस इज टू बी डिटरमाइंड. मतलब ओ आर इक्वल टू आर ले लिया. दिस इज टू बी डिटरमाइंड. ये फाइंड करना है हमें in the ratio 1:2. Also find P is the mid point. Also show that P is the mid point of the line segment RQ. RQ का mid point है P, मतलब Q point P point बीच में है. ठीक है. इधर ले लेता हूं मैं. दिस पॉइंट इज R. इधर नहीं, जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आर पॉइंट इधर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पी को मिड पॉइंट बताना आर क्यू का, तो आर पॉइंट इधर है. दिस इज आर. ओ आर वेक्टर इक्वल टू आर. ये सिर्फ समझने के लिए फिगर बनाया है हमने, ऐसा जरूरी नहीं इस फिगर को बनाया, बट समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ऐसा किया है. आपको पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम बी प्लस एन ए माइनस आ जाता है अपॉन m माइनस एन. याद आया फॉर्मूला? फॉर एक्सटर्नल डिवीजन माइनस आ जाता है. ये m/n है 1:2. r वेक्टर इक्वल टू m किसके पोजीशन वेक्टर होता है? mb, मतलब जो अपने को p पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर. p क्यों लिखा है ना, तो b इसका हो जाएगा. ये दिस इज b वेक्टर. ये b वेक्टर है हमारा, थ्योरी के हिसाब से ये b वेक्टर है और ये थ्योरी के हिसाब से a वेक्टर है. mb माइनस एन ए, तो b वेक्टर मतलब क्या लिखेंगे हम? OQ वेक्टर और 1 इंटू OQ वेक्टर माइनस 2 इंटू OP वेक्टर होल अपॉन 1 माइनस 2. R वेक्टर इक्वल टू 1 इंटू OQ वेक्टर कितना है?
a माइनस 3b और 2 इंटू ओपी वैक्टर कितना है, ये डॉट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी नहीं तो आपको डॉट लगेगा, सर ने डॉट लगा दिया स्केलर और वेक्टर के बीच में, ये तो गलत हो गया, वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई था, मैंने डॉट हटा के ब्रैकेट लगा दिया। ओपी वेक्टर कितना है 2a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2, हम तो सर इतना ध्यान ही नहीं देते हैं, आप तो लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4a प्लस ए, ये देखो यहाँ पे हटा दिया मैंने, माइनस 4a प्लस ए माइनस 3a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b अपॉन माइनस 1, मतलब 3a प्लस 5b आ जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर किसका आ गया, आर। नाउ क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो नाउ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ये वाला फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो इसमें ये कितना है, आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू बाई टू, ये फाइंड करते हैं हम। आर कितना है 3a प्लस 5b और क्यू कितना है a माइनस 3b बाई टू, 3a प्लस ए 4a हो जाएगा, 5b माइनस 3b 2b हो जाएगा और अपॉन में 2 से कट कर देंगे तो ये 2a प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आ रहा है, देखो ओपी वेक्टर के इक्वल, दिस इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, दिस इंप्लाइज P इज मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, क्योंकि हमने मिड पॉइंट ऑफ और मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू का मिड पॉइंट फाइंड किया, आर क्यू का मिड पॉइंट फाइंड किया और वो क्या आया, P आया, यही प्रूव करना था कि P मिड पॉइंट है। इज देयर एनी डाउट, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन 4 मार्क्स में, पुराने पेपर देख लेना, बोर्ड एग्जाम के पुराने पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो टाइम टू टाइम मैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको बताता भी जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप उन्हें ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, 10 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। हो सकता है मैं आपका टाइमिंग मॉर्निंग में 7 to 8 कर दूं कुछ दिनों के लिए, ताकि आपका कोर्स थोड़ा और अच्छी तरीके से हम कंप्लीट कर पाए, जल्दी हो जाए, 7 to 8 ऐसा हो सकता है। तो आप रेडी रहना उस टाइम के लिए, थोड़ा सा माइंड सेटअप कर लेना, 7 to 8 जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, और उसमें हम थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं 11th क्लास को भी 1 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ, 40 मिनट मुझे ऐसा लगता है कम लगते हैं थोड़े, इसलिए। और उसके लिए टाइमिंग दूसरी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो तो उसका टाइमिंग 7 to 8 ही रखूंगा मैं। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस, आई एम ट्राइंग, मैं सिस्टर से भी बात करूंगा और टीचर से भी बात करूंगा उसके बाद ही, क्योंकि स्कूल मैटर इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। The two adjacent sides of a parallelogram are given. Two adjacent sides are given. पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, ओ ए एंड ओ बी, 2i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर i माइनस 2j माइनस 3k, i माइनस 2j माइनस 3k, ये भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है। ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो डायगोनल तो ये हो जाएगा इसका ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इज डायगोनल, let C vector is parallel to OC vector. This implies C equal to T times of OC vector.
since OB vector equal to B vector equal to I minus 2j minus 3k, so we can write AC vector equal to OB vector equal to I minus 2j minus 3k with lambda. दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ है तो लेमडा की जरूरत नहीं है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल वेक्टर्स डिफाइन लगा दी हमने ना, इसलिए इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। आप बोलेंगे सर ये तो पैरेलल है, तो इसमें इसके पैरेलल है तो लेमडा का मल्टीप्लाई या टी का मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं टी का मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल साइड्स हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो फिर वो लेमडा 1 ही आएगा अगर करेंगे मल्टीप्लाई। नाउ in triangle OAC, triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, इसमें लगाएंगे तो हम O से A जाएंगे, A से C जाएंगे, उसका सीधा रास्ता O से C, O से A, A से C इक्वल टू OC, याद होगा आपको ये थ्योरी पढ़ाई है। OA कितना है 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस AC वेक्टर ये आ गया है मेरे पास i माइनस 2j माइनस 3k, तो OC वेक्टर तो तैयार हो जाएगा। OC वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, OC वेक्टर कितना हो जाएगा 2i प्लस i 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j एंड प्लस 2k, दिस इज OC वेक्टर। ये OC वेक्टर है, मतलब कौन सा वेक्टर है हमारे पास, ये हमें क्या फाइंड करना है, OC इज द डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल के पैरेलल वेक्टर C वेक्टर फाइंड करना है। तो C वेक्टर क्या होगा, उसका मॉड इसके मॉड के t टाइम्स के इक्वल होगा, मॉड C वेक्टर। तो ये C वेक्टर क्या होगा हमारे पास 3i माइनस 6j प्लस 2k, तो C वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम t टाइम्स ऑफ 3i माइनस 6j प्लस 2k। क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर बोला है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। अब यूनिट वेक्टर बोला है पैरेलल टू द डायगोनल, यहां सी कैप लिख देता हूं मैं, तो ये सी कैप है, तो इसका मॉड ले लेंगे 9 प्लस 36 प्लस 4, तो मॉड सी तो 1 होता है, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 7 हो जाएगा ये, तो टी इक्वल टू 1/7, तो सी कैप कितना आ जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन 7। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती ना तो मुझे आंसर टी की टर्म में लिखना होता, टी की टर्म में ही आंसर लिखना पड़ता मुझे। ये दो स्टूडेंट जो अभी यहां से स्विच हो गए हैं, बीच में से चले गए हैं, 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते थे, उनके नाम आज अटेंडेंस में से काउंट मत करना। अभी जो 2 स्टूडेंट गए हैं जस्ट, वो रिकॉर्डिंग में मेरे को देख लेता हूं, मैं बता दूंगा, नहीं तो आप कुछ चेक कर लेना जिन्होंने भी देखा है कि 2 स्टूडेंट जो अभी जस्ट गए, 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे आज तो क्या हो जाएगा। वैसे आज थोड़ा लेट शुरू किया था मैंने, सो ये सी वेक्टर आ गया, सी कैप आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। और एरिया तो आपको फाइंड करना आता ही है, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, मॉड ए क्रॉस बी, मतलब हाँ ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये आप ट्राई करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक द स्क्रीनशॉट। तीन स्टूडेंट अभी इसमें से गए हैं क्लास में से, लास्ट के 2 मिनट में, डू नॉट काउंट हिम, लीव मीटिंग। हर्ष धाकड़ हाँ जाओ, तुम जल्दी जाओ, तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ने हैं।